Hello friends, welcome to my channel. I wish you a very happy new year, and today we are going to talk about how the month of January 23 is going to pan out for you, that is for the Taurus ascendant people. So we are first going to start with the ascendant lord. The ascendant lord Venus is going to be stationed in the ninth house, and from 29th of December to 21st of January, this transitioning Venus in the ninth house is going to create an opportunity for you to travel. Now, since the ninth house indicates religion and higher learning, so the travel could be for a religious purpose or it could be for a higher learning. And since your ascendant lord is Venus and Venus is equivalent to enjoyment, you will also see a lot of enjoyment in this travel. After this time frame, Venus is going to transit into your 10th house from 22nd of January to 14th of February. And since Venus is going to be present in your house of action, it is going to provide you an opportunity to rise higher at your workplace. Venus is also the owner of House of Service, which is of sixth house, and as a result, people who are planning to change their jobs or are looking for a new job, they'll be able to find opportunities from 1st to 3rd of January and from 25th to 27th of January. So these are the results that Venus is going to give you in the January month. Let us also look at Mars. Mars is going to be stationed in the first house and it is going to continue to provide you with a lot of energy. Mars moved here on 13th of November and it is going to be stationed in the first house till 12th of March. If you utilize your energy at your workplace, then this Mars transit will be very good for you. But if you're not able to do so, this Mars is going to give rise to anger issues and then anger management will become a big problem for you. The key part here is to meditate and try to control your anger. The best way to utilize this Mars is to engage yourself rigorously at the workplace so that you can derive maximum benefits from this kind of a placement. Mars is also going to aspect its own house, which is the seventh house, till 12th of March. And as a result, your spouse will be very supportive of you during this time frame. 25th to 27th of January is the best time for your married life. Here, the seventh house is also getting the ninth aspect of Jupiter. There is a very high possibility of people who are unmarried to get hitched in the month of January. Mercury is going to aspect its own house, which is the second house from the eighth house. So people who are doing jobs that are related to the eighth house, people who are in manufacturing, technology related jobs, insurance, research, they will see a lot of cash flow between 12th and 13th of January. Mercury is also the fifth house lord. So people who are involved in speculation or people who are students, the best day for them in January are 4th and 5th of January and 20th and 21st of January. This last time frame, 20th and 21st of January, is also a very good time to enjoy with your kids. Jupiter continues to pass through your 11th house, and this is considered a very good position for Jupiter. Jupiter sitting here is indicating a solid gains possibility for you in this month. People who are freshly married, this Jupiter will continue to create chances of conception till April 2023, and it is also going to provide its ninth aspect to the seventh house. And as I indicated earlier, people who are unmarried can look for some kind of a good news during this time frame. Saturn is going to move to your 10th house on 16th of January and it will slowly start to increase your workload at your workplace. Whenever Saturn is passes through the 10th house, it indicates tremendous responsibilities for that native and it throws a lot of challenges to you. So people who take up these challenges, this Saturn brings laurels in their professional stream and you will see a lot of businessmen carving out a huge empire for themselves
during this time frame. So Saturn in the 10th house make people workaholic, but only those who accept these challenges of Saturn get rewarded in the longer time frame. Rahu is going to be present in your 12th house. See, Rahu is not considered to be very good in 4th, 8th and 12th houses. In fact, these are the worst positions for Rahu. This Rahu has the ability to create nuisance in your married life by tangling you into extramarital affairs. So just be very careful on that front. People who have Rahu placed in the 12th house or 8th house in their birth chart, they invite troubles from outside. Even when their life is going smooth, they will take such actions that will bring troubles into their life. You should also avoid getting into an argument with foreigners or with people of other religions till the time Rahu is placed here, because Rahu is the indicator of all things that are foreign or alien. So if you involve yourself into an argument with people who do not belong in your religion or people who are foreigners, then this Rahu is going to create long term difficulties for you by creating differences with those people. This Rahu is going to stay here till the end of October 23. You should take caution in all the things that I have just mentioned to you. If you are planning to buy a property, then also you should rigorously evaluate the paperwork. In fact, any kind of a legal document that you sign, you should read it properly. Otherwise, this Rahu will create another kind of a problem for you. Now, there are also certain days when you need to be very cautious, and these are the dates when Moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So for your ascendant, the days where you need to be cautious in January are 6th, 7th and 8th of January, 22nd and 23rd and 24th of January, and 28th, 29th and 30th of January. These are the dates where you need to be very careful and you should avoid taking any key decisions. Overall, this month is going to be quite helpful for you in rising at your workplace, and this transit of ascendant through the ninth house is also going to make sure that you enjoy your traveling in this month. So that's the summary for you for January. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हम जनवरी 2023 में हैं और नया साल का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आपके लग्नेश पे नज़र डालते हैं। लग्नेश आपके लिए शुक्र बनते हैं और ये जनवरी में आपके नवे भाव से भ्रमण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्र का प्रवेश नवे भाव में हुआ था, जहां पर ये 21 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। देखिए, नवा भाव व्यक्ति के धर्म को दिखाता है, उनके पिता को दिखाता है और लंबी दूरियों को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। तो यहाँ पर जब तक शुक्र बैठे हुए हैं 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक, ये आपके लिए एक मौका बनाएंगे ट्रैवल करने का। अब ये ट्रैवल या तो किसी धार्मिक कार्य के लिए आप कर सकते हैं या फिर आप हायर लर्निंग के लिए कर सकते हैं, कहीं बाहर पढ़ने वगैरह के लिए जा रहे हैं तो भी ये ट्रैवल हो सकता है। और चूंकि ये शुक्र है तो शुक्र हमेशा व्यक्ति को एन्जॉयमेंट देके जाता है, लग्जरी का कारक है। तो व्यक्ति को इस तरह के ट्रैवल में मज़ा भी बहुत आएगा। तो ये मौका आपके लिए जनवरी में ये शुक्र बना रहा है। इसके बाद 22 जनवरी से 14 फरवरी तक शुक्र आपके दशम भाव में मूव कर जाएगा, और दशम भाव आपके कर्म का स्थान होता है। तो यहाँ पे ये आपको आपके कार्यस्थल पे ऊंचा उठाने का कार्य करेगा, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। शुक्र आपकी कुंडली में सर्विस का भी कारक है। छठवें भाव से व्यक्ति का सर्विस या जॉब देखी जाती है, नौकरी यानी। तो यहाँ पर अगर आप नया नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं या आपके पास नौकरी नहीं है और आप इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, तो ये सबसे जो अच्छे दिन हैं जनवरी में वो हैं 1, 2 और 3 जनवरी, और 25, 26 और 27 जनवरी। इन 6 दिनों में अगर आप कोई नौकरी बदलने का प्रयत्न करते हैं, नई नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक नज़र मंगल पे डालते हैं। मंगल आपके प्रथम भाव में बैठे रहेंगे पूरा जनवरी में, और मंगल जब भी लग्न भाव से गुजरता है तो व्यक्ति में बहुत ऊर्जा भर देता है। यहाँ पर मंगल 13 नवंबर को आए थे और वो 12 मार्च तक यहीं बैठे रहेंगे। अब अगर आप मंगल की एनर्जी को अपने कार्यस्थल पे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये मंगल आपको कार्यस्थल पे काफ़ी नाम और शोहरत दे के जाता है। और अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये मंगल आपको काफ़ी गुस्सा दिलाने का कार्य करता है, क्योंकि खाली दिमाग जैसे शैतान का घर हम बोलते हैं, तो वो इस केस में व्यक्ति में काफ़ी सारे एंगर इश्यूज डेवलप हो जाते हैं।
तो फिर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए लोग बोलते हैं कि आपको मोती पहनना चाहिए या फिर आपको मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन ये हम इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप अपने कार्यस्थल पे खुद को व्यस्त रखें तो ये मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल सातवीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा, और सप्तम भाव आपके पति या पत्नी का स्थान होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का स्थान होता है। तो यहाँ पे जब तक मंगल विराजमान है 12 मार्च तक, तब तक आपको आपके पति या पत्नी से पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। और यहाँ पर गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ेगी, तो जितने भी लोगों का शादी नहीं हुआ है और जिन लोगों का शादी हो भी चुका है, उन दोनों के लिए जो सबसे अच्छे दिन होंगे वो जनवरी में 25, 26 और 27 जनवरी होंगे। जिनकी भी शादी हो चुकी है उनको काफ़ी अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये दिन किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बुध अष्टम भाव से भ्रमण करेंगे और ये अपने ही भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का संबंध खुद के कमाए हुए धन से होता है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छी 2 तारीखें हैं जनवरी में, वो है 12 और 13 जनवरी, जहाँ पे धन के आवागमन की सबसे ज़्यादा संभावना है। बुध पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, उनके लिए जनवरी में सबसे अच्छे दिन है 4 और 5 जनवरी और 20 और 21 जनवरी। इन दिनों में आपको इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी आपका एक आप बुलंदी को छू पाएंगे। यहाँ पर 20 से 21 जनवरी का समय आपको अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। गुरु 11वें भाव से भ्रमण करेंगे। गुरु का 11वें भाव में अपनी राशि से जाना बहुत शुभ कहलाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत सॉलिड गेन्स बनाने की संभावना कर रहा है, क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र से निकलेंगे। तो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको कार्यस्थल से भी अच्छा खासा लाभ होने की संभावना बनती है। गुरु यहाँ पे बैठ के अपनी नवी दृष्टि से, जैसा मैंने पहले बताया, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादीशुदा जीवन में एंटर करने के लिए सपोर्ट देता रहेगा। और अगर आप कोई अपना संतान प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी गुरु अपना सपोर्ट देगा जब तक ये यहाँ बैठा हुआ है, यानी अप्रैल 2023 के शुरुआत तक। अगर आप कोई नया नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो लोग नए कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमास वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी ये गुरु ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता रहेगा, और आपको जो भी आपने एरिया चूज किया है उसमें आगे जाने के लिए ये सपोर्ट देता रहेगा। जैसा मैंने पहले बताया, शनि 16 जनवरी से आपके दशम भाव में मूव कर जाएंगे। तो शनि जब भी दशम भाव से निकलता है, यहाँ पे अपनी राशि से निकल रहा है, तो व्यक्ति के ऊपर काफी जिम्मेदारियां डालता है, उसका कार्यस्थल पे प्रेशर बहुत बढ़ाता है। और शनि जिम्मेदारियों का प्लैनेट है। जितने भी लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं तो ये शनि उनको पनिश करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा चुनौतियों को सामना करेंगे, जितना आप चैलेंजेस को उठाएंगे, उतना ही ये शनि आपको अगले 2.5 साल में लाभ देके जाएगा। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने जब शनि उनके दशम भाव से निकला है सपोर्टिंग राशियों से, तो बहुत बड़े लेवल के बिजनेसेस खड़े किए हैं, उन्होंने अपनी एक लेगेसी बनाई है। तो यहाँ पर आपका अगर बिजनेस है तो शनि आपको इस तरह का ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है अगले 2.5 साल में। तो यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं कमर कस के तैयार हो जाना, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके ऊपर कार्यस्थल पे काफी जवाबदारियां देकर जाएगा। राहु 12वें भाव से भ्रमण करता रहेगा। देखिए, राहु की चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कहलाती है। राहु जब भी चतुर्थ भाव से गुजरता है तो व्यक्ति के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में वो कंफ्यूजन पैदा करता है, किसी तरह के अड़ंगे लगाने का कार्य करता है, व्यक्ति मानसिक रूप से खुश नहीं रह पाता। और अष्टम और 12वें भाव से जाता हुआ राहु में व्यक्ति बाहर से समस्या खींच के अपने पास लाता है। आ बैल मुझे मार जिसको हम कहते हैं, वो व्यक्ति करता है। उसका जीवन स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन वो बाहर से जीवन में समस्याएं लेकर आता है अपनी हरकतों की वजह से। तो यहाँ पे राहु 12वें भाव से भ्रमण करेगा तो ये आपके शादीशुदा जीवन में एक उथल पुथल लाने का कार्य कर सकता है। एक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं एंगेज हो सकते हैं। तो आप जब भी अपोजिट जेंडर के साथ बातें करें तो बहुत सावधानी पूर्वक उनके साथ डील कीजिए, जब तक राहु यहाँ से निकल रहा है, यानी अक्टूबर 2023 तक ये यहीं बैठा रहेगा। राहु हर उस चीज को दिखाता है जो कि फॉरेन है या एलियन है। तो जो भी लोग बाहर के कंट्री के हैं, जैसे आप एमएनसी में हैं तो आप कई फॉरेनर्स के साथ रोज बात करते होंगे, तब भी उन लोगों से भी आपको बात करने में सावधानी बरतनी है। आप जितने भी
दूसरे रिलीजन के लोगों से बात करते हैं, कोई भी आपका रिलीजन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो भी दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ बातें करेंगे तो उनके साथ आपके धार्मिक चीजों पर ही मतभेद होंगे या मनमुटाव होगा, तो उस केस में भी आपको ये राहु समस्या खड़ी करेगा, क्योंकि आपके उन लोगों के साथ डिफरेंसेस जो हैं आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे लॉन्गर रन में। तो किसी भी दूसरे धार्मिक लोगों के साथ अपना आर्ग्यूमेंट करना टालिए जब तक राहु यहाँ बैठा हुआ है। बेहतर रहेगा कि आप उनसे धर्म के बारे में कोई चर्चा ना ही करें, तो क्योंकि राहु वैसे भी अधर्म का कारक है, तो भगवान को ना मानने वाले बहुत से लोगों के इसमें राहु बहुत मजबूती से दिखाई देता है 12वें या 9वें भाव में। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है इन बातों से। और अगर आप कोई भी कागज साइन करते हैं तो उसमें भी राहु आपको फंसाने का काम करता है। कई बार डॉक्यूमेंट फोर्जरी में आप देखेंगे लोगों की राहु बुध की युति होती है कुंडली में, 12वें भाव में या 10वें भाव में भी। तो यहाँ पर राहु अभी तो अकेला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कागज से रिलेटेड कोई भी काम जहाँ भी आपको साइन करने हो, पेपर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर ये राहु उसके बेसिस पे जेल यात्रा तक करवा देता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए जब तक राहु यहाँ पर बैठा हुआ है अक्टूबर 2023 तक। अभी कुछ महीने में ऐसे दिन आते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। जनवरी के महीने में जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो है 6, 7 और 8 जनवरी, 22, 23 और 24 जनवरी, और 28, 29 और 30 जनवरी। इन 9 दिनों में आप सावधानी बरतिए। अगर आप ओवरऑल जनवरी को देखेंगे तो ये लग्नेश का नवम भाव से भ्रमण यानी आपको एक मजेदार यात्रा पे लेके जाने का समय है। और इसके अलावा मंगल आपको काफी ऊर्जा देता रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने कार्यस्थल पे कर सकते हैं और अपने पति या पत्नी के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।